اے ماہ رمضان ہے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے۔ تو بخشش کا مہینہ ہے، تو رحمت کا خزینہ ہے۔ بڑھ جائیں گے گناہ بنیں گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ احتساب کی نیت سے رکھے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف فرما دیے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ معززات، رمضان شروع ہونے والا ہے اور کچھ گھنٹے باقی ہیں، کوئی 1-1.5 دن باقی ہے۔ ہم سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ہماری پچھلی غلطیوں، کمیوں، کوتاہیوں کو ہم نے مد نظر رکھ کے اس رمضان کے مہینے میں اپنی اصلاح کرنی ہے کہ جو پورا سال غلطیاں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، اب ان سب کی ہم نے اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگنی ہیں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ایسا مقدس مہینہ ہے کہ یہ اپنے اندر لا تعداد اور لامحدود انگنت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سموئے ہوئے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ تو معززات، خوش قسمت وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی زندگی میں رمضان آ گیا اور انہوں نے روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ کو منا لیا، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی وہ لوگ ہیں ہمارے ارد گرد، رشتہ داروں میں، ہمسایوں میں، جاننے والوں میں، سٹاف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے اور اس رمضان میں نہیں ہیں ہمارے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کی گھڑیوں سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں اس کے اندر نازل ہو رہی ہیں اور یہ مسلمانوں کے لیے یہ ماہ مقدس نیکیوں کی ایک موسلا دھار بارش ہے، موسلا دھار بارش ہے ایک نیکیوں کی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک پیکج فرما دیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہر نیکی کا اجر آٹومیٹکی 10 گنا ہو جاتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں نیکی کرنا، اور جتنا کسی کا ایمان زیادہ ہوگا، جتنی کسی کے اندر ایمان کی حرارت، ایمان کی مٹھاس زیادہ ہوگی، اسی طریقے سے اس کی نیکی کا اجر بھی اسے زیادہ ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 700 گنا تک اور اس سے بھی زیادہ میں دے دوں گا۔ یعنی ہر مومن کا اپنا اپنا ایمان ہوگا، جتنی اس کے اندر ایمان زیادہ ہوگا، جتنا وہ خشوع و خضوع سے روزہ رکھے گا، جتنا وہ خشوع و خضوع سے روزے کے اندر اللہ تعالیٰ کی رستے میں خرچ کرے گا، یعنی خیرات کا اجر بھی تو 10 گنا سے لے کے 700 گنا، اور واللہ یضاعف من یشاء، اللہ اس سے بھی زیادہ دے دے گا اگر کسی کو چاہے گا۔ یہ اس کے اپنا خشوع و خضوع ہوگا۔ روزے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے، پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے فرض تھے،
اور روزے کا مقصد کیا ہے، یعنی پہلی امتوں کا کیوں سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارے اوپر ہی فرض ہے، ساری امتوں کے اوپر فرض ہے، اور انسان کو نیکی اور تقوی کے راستے پہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیا۔ روزے کا جس طرح ہر کام کا کوئی نہ کوئی ایک مقصد ہوتا ہے، اسی طریقے سے روزے کا بھی کوئی مقصد ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ سب سے زیادہ مقصد اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ لوگ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تقوی اور پرہیزگاری کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت کے ساتھ۔ اللہ نے فرما دیا ایک مہینے کے روزے رکھنے ہیں رمضان کے، تو ہم نے کہا آمنا وصدقنا، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم رکھیں گے۔ تو جب ہم دوسرے کاموں کی تیاری کرتے ہیں تو رمضان کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ جسمانی طور پہ اپنے آپ کو بھی کچھ تیار کرنا ہے، اگر کوئی کمزور ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کو اپنی دوائی کی فکر کرنی چاہیے، اپنی کمزوری ختم کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اپنی خوراک کو پہلے بھی بہتر بنانا چاہیے کہ میں رمضان کے اندر ذرا طاقتور ہو جاؤں، روزوں کا فیس کر سکوں میں۔ اور اس کے علاوہ رمضان کے اندر بھی اپنی خوراک کو بہترین بنائیں۔ اپنی خوراک کو اگر آپ بہترین بنا لیں گے تو پھر رمضان کے روزے رکھنے ہمیں مشکل نہیں ہوں گے۔ ہم دیکھیں ہیں کہ بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کتنے ہزاروں کی دوائیاں لکھ دیتے ہیں۔ اب مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا، ہلکی پھلکی جسم میں تکلیف محسوس کر رہی تھی، تو میں نے کہا رمضان سے پہلے میں کچھ اپسیٹ ہو جاؤں، تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے 1700 کی دوائی لکھ کے دی مجھے۔ تو اب دیکھیں کہ ڈاکٹروں کو اور دوائیوں کو ہم کتنے پیسے دے دیتے ہیں، تو وہی پیسے اگر ہم اپنی خوراک کے اوپر لگا لیں، اپنی خوراک کو بہترین کر لیں، تو انشاءاللہ روزے بھی کہیں نہیں جائیں گے، اور یہ نیکیوں کی موسم بہار یہ بھی ہم سے روٹ کے نہیں جائے گا۔ گھر کی خوراک، دودھ جو ہے اس کو زیادہ کریں، دہی کو لیں، دودھ کو رات افطاری میں بھی لیں، صبح سحری میں بھی لے سکیں تو لیں۔ اس کے علاوہ باقی جس طرح یہ کھجور ہے یہ بھی خون کو بڑھاتی ہے، اس طریقے سے اور بھی چیزیں جو آپ جس طریقے سے اپنی خوراک کو بہترین کر سکیں ہم کریں، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کو ہم نے لینا ہے۔ اور یہ نیکیوں کا موسم بہار جس کی زندگی میں آ گیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ بندہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کون؟ آپ نے فرمایا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے روزے رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر کے معافیاں مانگ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک صاف نہ کر لیا، روزے رکھ کے اللہ کو منا نہ لیا، اپنے گناہوں کی معافیاں نہ مانگ لی، رمضان زندگی میں اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے آیا۔ اور دوسرے نمبر پہ پھر انہوں نے یعنی نبی کریم علیہ السلام منبر پہ تشریف لینے کے لیے جا رہے تھے، جب پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہا آمین، دوسری پہ پاؤں رکھا تو آمین، تیسری پہ پاؤں رکھا تو آمین۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہا اللہ کے رسول آمین کس بات پہ کہی، ذرا ہمیں بھی فرما دیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آیا، دوسری پہ رکھا اور دوسری پہ اس نے کہا، تیسری پہ بھی کہا، تو میں نے آمین کہا۔ فرشتے نے کہا کہ وہ بندہ ناکام و نامراد ہو گیا جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنے آپ کو گناہ سے آزاد نہ کروایا۔ تو میں نے کہا آمین۔ دوسری دفعہ اس نے کہا کہ وہ بندہ بھی ناکام و نامراد ہو گیا جس نے اپنے ماں باپ دونوں کو یا ایک کو اپنی زندگی کے اندر پایا بڑھاپے کی حالت میں اور ان کی خدمتیں کر کے اس نے جنتیں حاصل نہ کی، وہ بھی ناکام و نامراد ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جس کے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا گیا اور اس نے نبی کے اوپر درود نہ پڑھا وہ بندہ بھی ناکام و نامراد ہو گیا۔ تو میں نے کہا آمین۔ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ درس کے اندر کئی جگہ پہ ہم نبی کا نام لیں گے اور آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نیکیوں کو حاصل کریں اور اللہ نہ کرے کہ اس بندے میں شامل ہو جائیں جن کے اوپر ہمارے نبی نے آمین کہا۔
मुअज़्ज़ज़ात नबी करीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन इंसान कौन सा है, तो आपने फरमाया जो सबसे ज्यादा कुरान पढ़ने वाला हो, सबसे ज्यादा नेकियां हासिल करने वाला हो, सबसे ज्यादा बुराइयों से बचने वाला हो और सबसे ज्यादा सिला रहमी करने वाला हो, अच्छा सलूक करने वाला हो रिश्तेदारों के साथ भी और दूसरे लोगों के साथ भी, वो बंदा सबसे अच्छा है अल्लाह की निगाह में। हमने अपना मुहासबा करना है इस रमजान के महीने के अंदर। हमने नेकियों को हासिल करने के लिए, नेकियों के अंदर दौड़ लगाने के लिए, कुरान को समझने के लिए अपने आप को कमर बस्ता किया है, अपने आप को तैयार किया है। नेकियां हासिल करनी है, कुरान को समझ के पढ़ने वाला सबसे बेहतरीन शख्स हमारे नबी ने फरमाया समझ के पढ़ने वाला। और आपने फरमाया अलैहिस्सलाम फरमाया कि जिसने समझ के नहीं पढ़ा उसने गोया पढ़ा ही नहीं, जिसको समझ नहीं आई बात की उसने गोया पढ़ा ही नहीं। तो आप देखेंगे बात हमें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम कहते हैं कि हमने तो कुरान पढ़ा तो हमें क्यों ना उसका अजर मिलेगा। जब अमल नहीं किया गया तो अजर नहीं फिर मिलेगा। मसलन आप कुरान के अहकामात जो हैं आप उनको पढ़ते थे लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं करते। मसलन जिस तरह जे शब बारात गुजर के गई तो लोगों ने कहा कि हम इस रात में इबादतें खूब कर लेंगे और सारी जो है हमारी वो नेकियां हासिल हो जाएंगी और जन्नतें मिल जाएंगी, और वो उस रात के अंदर जो है वो किसने मरना है वो भी लिखा गया, किसी ने जो है वो पैदा होना है दुनिया के अंदर आना वो भी लिखा गया, वो पत्ते किसी के लग रहे हैं किसी के झड़ रहे हैं। तो इस तरह की बातें लोगों के अंदर जो पाई जाती हैं और लोगों ने इस रात इबादतें भी की। एक बात को आपने याद रखना है, इबादतें जब भी करें आपकी इबादतें जाया नहीं होती, रायगा नहीं जाती। लेकिन अगर आप फराइज को छोड़कर सिर्फ नवाफल की तरफ दौड़ते हैं तो जब तक आपके फराइज पूरे नहीं होंगे नवाफल कबूल नहीं होंगे। जब तक आप फराइज की पाबंदी नहीं करेंगी नवाफल कबूल नहीं होंगे। मसलन अगर कोई औरत है, कोई मर्द है, कोई बच्चा, कोई बड़ा, कोई जवान जो भी है वो सुबह की नमाज नहीं पढ़ता, लेकिन सुबह उठता है तस्बीह लेके बैठ जाता है और वो तस्बीह करनी शुरू कर देता है। अल्लाह की हमदें सुनाई उसने बड़ी की, नातें पढ़ी, अल्लाह की मोहब्बत में हमदें पढ़ी, नबी की मोहब्बत में नातें पढ़ी। जब अल्लाह का कहा नहीं मानना और नबी का कहा नहीं मानना तो फिर आपकी हमदें नातें पढ़ी भी रायगाह चली जाएंगी। सबसे असल चीज क्या है? उसके हुक्मों को मानना। अब रमजान क्या है? अल्लाह का हुक्म है, एक महीने के मुसलसल रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह, चाहे मुश्किल हो, चाहे परेशानी हो, चाहे हमें उसके लिए कोई जगह चेंज करनी पड़ जाए, चाहे अपने आप को किसी मतलब के सर्द जगह पे बैठना पड़े, को अपने लिए कोई अच्छा मौसम पैदा करना पड़े, ये तो वो करना है हमने। और जब अपने रोजे नहीं रखे ताकत के होते हुए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे ने रमजान का एक रोजा छोड़ दिया जानबूझकर, ताकत रखता था उसको कोई मसला नहीं था रखने में, एक रोजा उसने रमजान शरीफ का छोड़ दिया, अल्लाह ताला फरमाते हैं जमाने भर के रोजे रख ले उस अजर को नहीं पा सकता। जमाने भर के पूरी जिंदगी रोजे रख ले नफली, उस रमजान के रोजे को नहीं पा सकता, उसके अजर को नहीं पा सकता। रमजान का एक रोजा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बंदे को 70 साल जहन्नम से दूर कर देता है। कितनी देर? 70 साल जहन्नम से दूर कर देगा एक रोजा रमजान का। क्यों 70 साल दूर करने के बाद? फिर क्योंकि वो जिंदगी लामहदूद है, लामतनाही सिलसिला है, मरने के बाद वो सिलसिला खत्म नहीं होगा। ये हम दुनिया के अंदर जीते रहते हैं और हम कहते हैं कि बस जी बड़ी जिंदगी पाली, बड़ी जिंदगी पाली, और अल्लाह ताला जब आखिरत में पूछेंगे हाँ तू इतनी जिंदगी गुजार के आया बंदे तूने क्या किया, बंदा कहेगा, एक दूसरे से पूछेंगे, अभी मैं खाली सबक पढ़ा रही थी बच्चों को, एक दूसरे से पूछेंगे और कहेंगे हम कितनी देर रहे, एक बंदा कहेगा कि एक दिन रहे, दूसरा कहेगा नहीं आधा दिन, और तीसरा कहेगा नहीं दिन का कुछ हिस्सा। दुनिया की जिंदगी
जिनका कुछ हिस्सा आ रहा है कि हम गुजार के आए हैं। क्योंकि आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में ये दुनिया की जिंदगी फिर हीच नजर आएगी। कैसे? वो 50,000 साल तो महशर के मैदान में खड़े होना, 50,000 साल है महशर के मैदान में खड़े होना है, तो फिर जिंदगी जो 50 साल भी गुजार के चला गया, 50,000 साल के मुकाबले में कहेगा मैं थोड़ा सा भी नहीं गुजार के आया, मैं तो कुछ भी नहीं गुजार के आया। तो मत ये समझना कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा करके बेमुहार छोड़ दिया है और अल्लाह ताला का कोई मकसद नहीं था पैदा करने का। नहीं, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुनिया को मैंने खेल कूद नहीं बनाया, ये खेल कूद का मैदान नहीं है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने मखलूकात को बनाया तो अंबिया कराम को भी भेजा साथ कि इनको सीधा रास्ता दिखा के आना है। मजेदार, हम देखते हैं बाजार से हमको चीज खरीदते हैं तो उसके साथ छोटी सी कापी होती है, ये खराब होगी तो जहाँ से ठीक करना इसकी तरीके से ठीक किया जाता है। और बकायदा जब चीज बनती है तो उसके मकैनिक भी फिर बनते हैं, ये चीज खराब हो जाएगी तो उसको ठीक करना है। तो जब अल्लाह ताला ने मखलूकात को पैदा किया तो अंबिया कराम को साथ भेजा। और कितने नबी आए हैं लोगों की सलाह के लिए, कौन बताएगा मुझे? कितने नबी आए? 1,24,000 और इसे आम लफ्जों में 1.25 लाख पैगंबर भी कहा जाता है। 1.25 लाख तो आपको याद रहेगा ना, 1,24,000 तो भूल जाता है, 1.25 लाख पैगंबर अल्लाह ताला ने दुनिया की इस्लाह के लिए भेजे। और आपने देखा है, ये पीछे आप बैठ पड़े, पीछे आप जाएं, जो आज से 20-30 साल पहले जो सारा कुछ था ही नहीं, जो आजकल इतनी मशीनरी और हर चीज जो इतनी आराम और सुकून की जो चीजें आजाद हो चुकी हैं, जो था ही नहीं पहले। आज से 30 साल पहले अब चले जाएं, इतना कुछ था ही नहीं। तो देखें कि पिछली जो लोगों ने जिंदगियां गुजारी, अंबिया कराम आए, लोगों को सीधा रास्ता दिखाया। आज हमने क्या समझा, हम बहुत तरक्की पजीर हो गए हैं और उस रास्ते की आज जरूरत नहीं है हमें। अल्लाह ने कायनात को बनाया इसलिए जिन्ना वाले इंसान के मेरी इबादत करके हैं, दुनिया के जानने के बाद का सामान बना के हैं, आखिरत की तैयारी करके हैं। अल्लाह ताला ने इनाम और कराम भी तो अल्लाह ताला ने नबियों के हाथों भेजे हैं। आज हमें बनाया किसी और के लिए गया, दुनिया के अंदर किसी और काम के लिए आए और हमने किसी और काम को शुरू कर दिया। दुनिया में जिस काम के लिए तू आया था इंसान, बदबख्त उससे वही काम रह गया। वो काम करने के लिए आया था, आखिरत बनाने के लिए आया, अंबिया के बातों पर चलने के लिए आया, वो काम रह गया। और आज हम इस्लाम से बिगाने किस लिए होगा ज्यादातर, जब हमने अंग्रेजी तालीम को अपना लिया, कुरान को छोड़ दिया और हमारे सिलेबस में से कुरान निकाल दिया गया, कुछ दुआएं तो रख दी गई और वो भी तर्जमे के बगैर। बच्चों के अंदर शऊर नहीं था और असातिज़ा कराम के अंदर भी दीनी शऊर नहीं था। असातिज़ा कराम ने भी बच्चों की रहनुमाई ना की, स्टूडेंट की रहनुमाई नहीं की और फिर माँ बाप ने भी रहनुमाई नहीं की। माँ बाप कहाँ से बने? यही इन इदारों से ही तो माँ बाप बने, इन इदारों ने ही तो माँ बाप बनाए। और हम अंग्रेजी तालीम याफ्ता माँ बाप बने और अपने नबियों की तालीम याफ्ता माँ बाप ना बन सके। यही वजह हुई कि हम माँ बाप तो बने लेकिन नाकाम रहे, बच्चों की तरबियत करने में नाकाम रहे। कितने ही वो लोग आज भी हैं मुसलमानों के घराने जिनके अंदर सुबह की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, और जो बात झूठ नहीं है, सुबह की नमाज भी जिन घरानों के अंदर नहीं पढ़ी जाती, और सुबह की नमाज के बाद मसल्ले पे बैठना, जिक्र अज़कार करने, ना माँ बाप को खुद आते हैं ना उन्होंने बच्चों को सिखाए। माँ बाप को खुद को पता नहीं था कि वो दुआएं कहाँ से मिलेगी, उस कॉपी का नाम क्या है, वो तर्जमे वाला कुरान कहाँ से मिलेगा, उस कुरान का नाम क्या है, इसको पढ़ना कैसे है। यही वजह है कि आज वो घराने जो अपने आप को हाफिजों का घराना समझते हैं, हाफिजों का घराना, इस तरह के मैं आपको कई घराने दिखा सकती हूँ, आपकी आंखों से मेरे साथ चले, जिनका दादा भी हाफिज था, जिनका बाप हाफिज था, जिनके भाई हाफिज है, जिनके बेटे भी हाफिज मार रहे हैं, वो औरतें बेकर्ता गलियों में फिरती हैं। और वो बेनमाजी घराना, वही जो उसने कुरान हिफ्ज़ कर लिया वही उसने सुनाने के लिए जाना, पढ़ाने के लिए जाना, वही सुबह उठेगा, वही नमाज पढ़ेगा, वही जाएगा, बाकी सारे सोए हुए हैं।
उस बंदे का असर अपने घर वालों पे क्यों ना हो सका? उस दादे का असर क्यों ना लिस्ट के साथ वो उसकी पुश्तों के साथ उनके घर में आया? कौन बताएगा मुझे? जिसने भी कुरान हिफ्ज किया उसने तोते की तरह रट्टा है उसको मानी को समझा नहीं है। सहाबा कराम सर रात रोते रहते थे, नमाज पढ़ते, नफलों के अंदर कुरान पढ़ते, वो रोते क्यों थे? इल्म वाले, फजल वाले, जन्नतों के टिकट नबी करीम सल्लल्लाहु ने अपनी जुबान मुबारक से उनको दे दिए, वो फिर भी रोते हैं। वो फिर भी कुरान को पढ़ते थे, रोते थे। क्यों रोते थे? उनको समझ आ रही थी जो लफ्ज पढ़ते थे। आज हमारी नई नस्ल ने पढ़ा या पुरानी नस्ल ने पढ़ा तो समझ के बगैर पढ़ा, तोते की तरह रट लिया, कोई पता नहीं इसके अंदर क्या है। बहने हैं नमाज बेनमाज बेपर्दा, कोई घर के अंदर अच्छाइयां ही नहीं, अच्छाइयां भी नहीं, अखलाकियात भी हमारे घर से निकल गए। मुसलमानों के घरों से अखलाकियात भी निकल गए, वो सीखे नहीं, अखलाकियात सीखने से आएंगे। अब मैंने आपको कहा कि रमजान के अंदर सदके का अजर, नवाफल का अजर 10 गुना ऑटोमेटिक हो गया और 700 गुना और उससे भी ज्यादा की आप अल्लाह से तलब करें, अल्लाह उससे भी ज्यादा देगा आपको। तो ये हदीस सुनने के बाद आपका नमाज पढ़ने को भी जी करेगा, आपका रोजा रखने को भी दिल चाहेगा, सदका खैरात करने को भी जी चाहेगा। गरीब है तो थोड़ा कर दे, 10 रुपए रोज का कर दिया, 15 कर दिए, 5 रुपए कर दिए, कुछ करो तो सही। और गरीबी में दिया वो सदका अल्लाह ताला को अमीरी से भी ज्यादा पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु से पूछा गया सबसे बेहतरीन सदका कौन सा है? आपने फरमाया जो किसी ने गरीबी में दिया, गरीबी में दिया। अल्लाह ताला ने इसको दाएं हाथ से ले लिया और उसको पालना शुरू कर दिया। पालते 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 वो पहाड़ों की तरह बन गया। और जब वो बंदा गरीब अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा तो अल्लाह ताला पूछेंगे, अल्लाह ताला फरमाएंगे जो तेरे सदका और खैरात का ढेर है। वो कहेगा अल्लाह मेरा नहीं है, मैं तो गरीब बंदा था, दुनिया के अंदर कुछ भी नहीं, एक दुख दूरे किसी को देने जोगा था, मैं तो कुछ देने का ही नहीं था। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जो तूने गरीबी में दिया था दिल के अंदर चाह के कि ये मेरा अल्लाह के रास्ते में लगेगा और मुझे अल्लाह का अजर मिलेगा, जो तेरे दिल का जितना ज्यादा तकवा था तुझे उतना ही ज्यादा उसका अजर मिलेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने उसको पालना शुरू कर दिया और आज जो पहाड़ों की तरह की नेकियां सारी तेरी। और जिसके अल्फाज हैं कि जिस तरह गाय का बच्चा बढ़ता है इस तरीके से वो सदका बढ़ना शुरू हो जाता है। आपने कभी देखा गाय बांधी है, गाय का बच्चा, और गाय का बच्चा जल्दी बड़ा हो जाता है भैंस के बच्चे से, और वो पलना शुरू हो गया, उसका फिर बच्चा आ गया, उसका फिर बच्चा आ गया, और कितने ही वो जानवर बन गए। इसी तरीके से अल्लाह आपके सदकात और खैरात को बढ़ाता रहेगा तुम्हारे तकवा की वजह से। दिल के अंदर ये चीज होनी चाहिए कि ये मेरा अल्लाह को सीधा लग रहा है। और एक कौल है किसी सालिही का, वो कहते हैं कि अगर बंदे को पता चल जाए कि जो मैं सदका खैरात कर रहा हूँ वो बंदे के हाथ में जाने से पहले अल्लाह के हाथ में जाता है तो देने वाले की लज्जत लेने वाले से ज्यादा बढ़ जाएगी। देने वाले की लज्जत है देने वाले से लेने वाले से ज्यादा बढ़ जाएगी। उसको पता कि मैंने दिया वो पहले गया अल्लाह के हाथ में, उसके बाद गया उस बंदे के हाथ में। तो ये चीजें हमने कहाँ से सीखनी थी? हमने बेशक हाफिज हैं लेकिन अच्छाइयाँ नहीं है उनके अंदर। हम सायों से लड़ाई, घर के अंदर लड़ाई, घर के अंदर जो है वो अदल नहीं, इंसाफ नहीं। आज घरों के अंदर झगड़े क्यों हैं? घरों के अंदर भी झगड़े इसी वजह से। घर के अंदर बहू है उसको हक नहीं दिया गया, उसको इज्जत नहीं दी गई, उसको इंसाफ नहीं मिला, उसकी सही बात भी गलत है। और जो दूसरे हैं वो उनका बड़ा होने की वजह से उनकी गलत बात भी सही है। तो जो घर के बड़े हैं वो जब बड़े बनेंगे तो घरों के अंदर लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। घर के बड़े बड़े बने, उनको अपनी बात बड़ी करनी चाहिए। घर के अंदर अदल हो, इंसाफ हो। कैसे हम घरों की लड़ाइयां घरों के अंदर? मैंने बड़े बड़े दीनदार घरों के अंदर जाके मैंने हालात के जायजे लिए, उनकी बातों पे
ان کے جائزہ میں نے صرف اسی لیے لیا کہ میں دیکھوں تو صحیح ان کے گھروں کے اندر لڑائیاں بھی ہیں، اور الحمدللہ میں نے دیکھا کہ نیک گھرانوں کے اندر لڑائیاں نہیں ہیں، حق مل رہا ہے، بہو کو حق مل رہا ہے، اگر گھر کے اندر والدہ ہے، بوڑھی ہے یا جوان ہے، جو بھی اس کو بھی عزت مل رہی ہے۔ اگر بہو گھر کے اندر دین یا تعلیم جانتا ہے، دین والی ہے، وہ اپنی ساس کو عزت دے رہی ہے، اس کو جو مرتبہ جو حق ہے اس کو دے رہی ہے، اور گھر کے اندر جو بڑے ہیں اس کو اس کا حق عزت اس کو دے رہے ہیں، بچوں کو اپنے حقوق انصاف سارا کچھ مل رہا ہے گھر کے اندر۔ تو یہ کہاں سے ہم نے لینا تھا؟ یہ ہم نے قرآن کی تعلیمات سے لینا تھا، اور ان کو تو ہم نے پڑھ لیا ریڈنگ کے ساتھ اور پڑھ کے اس کو رکھ دیا اونچا، یہ برکتیں خود بخود ہی نازل ہو رہی ہیں، یہ ہمارا ایک ذہن بن گیا۔ ایک بات کو یاد رکھنا، کسی بھی قوم کے اندر نبی کا آ جانا ان کے لیے باعث نجات نہیں ہوگا جب تک وہ نبی کی تعلیمات سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، جب تک وہ نبی کی باتوں سے، نبی کے لائے ہوئے دین سے، شریعت مطہرہ سے جب تک وہ فائدہ نہیں اٹھائیں گے، کسی نبی کا آ جانا ان کے لیے باعث نجات نہیں بنے گا۔ مثال دیتی ہوں آپ کو، مکے کے اندر کافر لوگ تھے، جب ہمارے نبی آئے مکے کے اندر کافر تھے، کچھ مارے گئے غزوہ بدر میں، کچھ احد میں مارے گئے، اس کے بعد داہے بداہے جنگیں ہوتی رہی، تو وہ جنت میں چلے گئے تھے، کافر جنت میں چلے گئے تھے؟ نہیں گئے نا، کیوں نہیں گئے؟ ان کے زمانے کے اندر نبی آیا ہوا تھا، جب نبی کی تعلیمات کو قبول نہیں کیا تو جہنم میں چلے گئے۔ نبی کا آ جانا باعث برکت ان کے لیے نہ بنا، باعث نجات ان کے لیے نہ بنا۔ مشرکین بھی تھے مکے کے اندر، مشرک لوگ جو اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ اوروں کو شریک بھی کرتے تھے، اور آج مشرکین مکہ کا عقیدہ اور آج کے مسلمانوں کا عقیدہ، ان کے اندر آپ قرآن کی تعلیمات پڑھیں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ہم مسلمان نام کے عقیدہ ہمارا ان جیسا، اور ہمارے کام شاید ان سے بھی بڑے ہوئے ہیں، غلطیاں برائیاں ہمارے اندر شاید مشرکین مکہ سے بھی زیادہ ہیں۔ تاریخوں کو پڑھا کریں، آپ کے پاس گولڈن چانس ہے، یہ رمضان کا مہینہ، قرآن کی تعلیمات کو سیکھا کرے۔ نمبر 1، آپ نے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، اور کبھی بھی قرآن کو اس نیت سے نہیں اٹھانا کہ اس کو ختم کرنا ہے، نہیں، کبھی اس نیت سے آپ نے قرآن کو نہیں اٹھانا، کبھی اس نیت سے اس پارے کو نہیں اٹھانا اس کو میں نے ختم کرنا ہے۔ قرآن 1 سال میں ختم کرنا فرض ہے ہمارے اوپر، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایک طرف سے پکڑا ہوا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح یہ خراب کھجوریں نہیں ہوتی تو جس طرح ہم ان کو پھینکتے جاتے ہیں، اس طریقے سے ہم قرآن کو پڑھتے پھینکتے جاتے ہیں۔ جب دل کے اندر اثر نہیں ہوا، جب ہمیں سمجھ نہیں آئی اس کو پڑھا اس کے اندر ہے کیا، ہم نے صرف لفظوں کو پڑھا اور لفظوں کو رٹا۔ ایک سپارہ پڑھے آپ رمضان کے اندر، تشریح کے بغیر اگر پڑھے تو ایک سپارہ ہم روزانہ کا پڑھ سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، صرف ترجمے کے ساتھ۔ کچھ چیزیں جن کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ان کو کچی پینسل کے ساتھ نا انڈر لائن کر دیں ان کو، وہ کبھی آپ کو موقع ملے الحمدللہ انشاءاللہ اور انشاءاللہ اسی جگہ پہ رمضان شریف کے فوراً بعد کلاس شروع ہو جائے گی ترجمے کی، سیکنڈ ٹائم۔ آپ سب نے خود بھی فائدہ اٹھانا ہے اور دوسروں کو بھی آپ نے اس جنت کے راستے کا پتہ بتانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اچھی بات سنانے والا اور دوسرا راستہ دکھانے والا، ان دونوں کا اجر برابر ہو گیا۔ ایک راستہ دکھانے والا ہے اور ایک اچھی بات سنانے والا، دونوں کا اجر برابر ہو گیا۔ اتنی جو ہے اس کے اندر اجر ہے اچھی باتیں سننے کا اور اچھے راستے پہ لگانے کا۔ آج ہم سب جنتوں کو چاہتے ہیں، اگر میں کہوں کون کون جنت میں چاہتا ہے تو ہمارے سب کے ہاتھ کھڑے ہوں گے، ہم سب جنتوں میں جانا چاہتے ہیں، جنتوں میں جانا چاہتے ہیں لیکن عمل کے بغیر جانا چاہتے ہیں۔
हम कहते हैं बस गरीबी में ही चले जाए, ना रोजे रखने पड़े, ना नमाजें पढ़नी पड़े, ना कोई जिक्र अज़कार करने पड़े, ना अल्लाह से माफियां मांगनी पड़े, ना हमसायों से अच्छा सलूक करना पड़े, ना रिश्तेदारों से, ना किसी को सदका दे, ना खैरात दे, ना यतीमों का, ना गरीबों का, ना कोई ख्याल। और कितने ही इस तरह के काम हैं जो हम नेकियां करने वाले लोग भी गलत काम करते रहते हैं, उनको पता नहीं है इस काम का कि ये गलती हम कर रहे हैं। हम गलतियों को तब छोड़ेंगे जब हमें पता चलेगा कि ये गलती है। पता कहाँ से चलेगा? अल्लाह और इसके नबी की तालीमात पढ़ने से पता चलेगा हमें। तो आज से अपने दिल के अंदर तहैया करना है, कुरान तर्जमे वाला लेना है, तर्जमे के बगैर नहीं लेना, क्योंकि हमें नहीं उसका पता। हम अजमी, उर्दू, पंजाबी, सराइकी बोलने वाले लोग हैं, और उर्दू तो माशाल्लाह सभी पढ़ते हैं, सभी समझते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तान की ये कौमी ज़बान उर्दू है। तो उर्दू तर्जमे के साथ कुरान लें और एक सिपारा पढ़े, आधा पढ़ ले, लेकिन समझ के पढ़े। और रमज़ान के बाद आप मुझे अपने ख्यालात और अपने जज्बात नोट करवाना कि आपका ईमान बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। कुरान पढ़ते हुए लोगों को कुताते हैं, और मैं कहती हूँ कि सारा सारा दिन मैंने कुरान पढ़ा, कभी नहीं कुताई। वो दिन होते हैं ना बाद खवातीन पे कि वो हमल के आखिरी दिन है और कोई काम नहीं होता घर में, तो अपने पास ही कुरान रख लिया, तो दो सराहने रख ले, एक एक ऊपर लेटना पड़ा तो लेट गया, कभी लेट लिया, कभी बैठ गया, कभी नींद आ गई तो सो भी लिया, उठा मुंह के ऊपर छींटे मारे, वजू कर लिया, दोबारा तरो ताज़ा हो गया, फिर कुरान को पकड़ लिया। सारा सारा दिन भी आप तफसीर पढ़े, सारा सारा दिन तर्जमा पढ़े, आप कभी नहीं कुताएंगी। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस चीज़ की, क्योंकि आपको समझ आ रही है। आपको एक लज्जत मिलेगी कुरान के अंदर से। आपको जब साहबा कराम के साथ याद की जब तज़किरे पढ़ेंगे, जब अल्लाह की बातों को पढ़ेंगे, ईमान बढ़ता जाएगा, फिर घटेगा नहीं। हमारा दिल का उकताता है, हमारा दिल उकताता है तब जब हमें समझ नहीं आती उसकी। और जो गलियों में और जो बाजारों में बिकते हुए कुरान खरीदा करें, क्योंकि इनके अंदर जो कुछ मर्ज़ई लोगों ने भी अपने कुरान फैलाने शुरू कर दिए। कहते हैं ना जो पुराने ले लो और नए, पुराने दे दो और नए ले लो, ये मर्ज़ई अपना लिटरेचर जो है वो दे रहे हैं। इसके ऊपर एहतियात करनी है आपने। तर्जमे वाला कुरान खरीदें और आसान उर्दू वाला खरीदें, और अगर कोई ना खरीद सके तो मुझसे रब्ता करें, मैं आपको खरीद दूंगी बेहतरीन कुरान का। लेकिन आपने अहद करना है कि कुरान को तर्जमे से पढ़ना, नमाजें सारी पढ़नी है, रोजे सारे रखने हैं, नमाजें सारी पढ़नी है। हाँ, अगर कोई औरत हामला है और अगर कोई औरत बच्चे को दूध पिला रही है तो उनके लिए हदीस के अंदर और कुरान के अंदर उसके अंदर नरमी है कि वो कुछ रख ले और कुछ छोड़ दे, अगर रख सकती है तो। यानी एक दफा बच्चा होता छोटा से ज्यादा, वो सिर्फ दूध पे होता है, तो वो कुछ छोड़ दे, कुछ रख ले, और अगर नहीं रखे जाते तो सारे भी छोड़ दे। तो बाद में उसकी अगला रमजान आने से पहले पहले गिनती पूरी करनी है। और अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है तो वो ऊपर से भी कुछ ना कुछ खा भी लेता है, तो फिर रोजे सारे भी रख सकती है। कुछ अपना दूध 12-1 बजे तक चला, उसके बाद ऊपर वाला पिलाना शुरू कर दिया। तो जितनी आप मशक्कतों से, मेहनतों से, लेकिन बच्चे का आंकड़ा मारा जाए, जितनी मशक्कतों से, मेहनतों से आप अल्लाह की इबादत करेंगी, अजर भी आपको इस तरीके से ज्यादा मिलेगा। लेकिन दिल के अंदर तकवा जरूर होना चाहिए, अल्लाह के ऊपर मुकम्मल भरोसा जरूर होना चाहिए कि अल्लाह में इसका अजर जरूर देगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रोजादार के लिए जन्नत का वादा हो गया। अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा कर दिया रोजादार के लिए। रोजादार, अल्लाह ताला ने फरमाया कि सारे जो अमल बंदा करेगा, फरिश्तों से कहा जाएगा इतनी नमाज, इसका इतना अजर दे दो, इसके इतने सदका खैरात है, इसका अजर दे दो, ये हज है, इसका इतना अजर दे दो, इसका इतना अजर दे दो। और जब रोजे की बारी आएगी तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा दूंगा। क्योंकि जितना काम बड़ा है, जितनी मशक्कत है, जितनी मेहनत है, और अल्लाह के हाथ किस चीज की कमी नहीं, पता नहीं अल्लाह अजर कितना देगा। अब देखिए इसके अंदर तो हद नहीं है कि मैं दूंगा और इतना दूंगा, नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं अजर मैं दूंगा, रोजे का अजर मैं दूंगा, असामली भी मैं ही इसका अजर दूंगा।
नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो सही और तरकीब के अंदर ये हदीस है कि रोजादार शुहदा के साथ खड़े होंगे, शुहदा के साथ, जो अल्लाह के रास्ते में जिन्होंने जाने दी, रोजादार उनके साथ खड़े होंगे। अब जो उनके अपने अपने ईमान की बात है, उनके अपने अपने तकवे की बात होगी। जितना किसी के अंदर खुशू व खुजू होगा नेकी का, इतना ही उसको अल्लाह ताला के यहाँ दर्जा मिलेगा। रमजान जो दरअसल लफ्ज़ है ना, ये रमजान से निकला है। रमजान कहते हैं मौसम खरीफ की बारिश को। अब देखें, अभी अंधेरियां शुरू नहीं हमारे इलाकों में, अभी इसी महीने में ना अंधेरियां शुरू हो जाएंगी, ये तेज हवाएं शुरू हो जाएंगी, और जो गर्द है, जो धूल है, ये सब मकानों पे पड़ जाएगी, दरख्तों पे पड़ जाएगी, ये सारे। और फिर उसके बाद वो एक बारिश होती है, फसल खरीफ की बारिश उसे कहते हैं। तो ये बारिश होती है, तो बारिश से ये सारे दरख्त भी धुल गए, दीवारें भी धुल गई, मकान भी धुल गए, गलियां भी साफ हो गई और सब चीज निकल गई। तो इसी तरह जो रमजान का महीना है, गलतियां कोताहियां जो की, अल्लाह ताला से माफियां मांगी, अल्लाह ताला ने रमजान को भेज दिया जो नेकियों को एक पैकेज है। अब देखिए, आप पार करके देखें तो आपके 3-4 रुपए जो 1 मिनट के लगेंगे, और अगर आप पैकेज कर लेंगे तो आप जितनी मर्जी कॉल करती रहे, वो थोड़े से पैसों में आपको बहुत ज्यादा मिनट मिलेगा। तो ये नेकियों का सीजन है, ये रमजान शरीफ एक नेकियों का पैकेज है, आपके पास पैकेज लग चुका है। अब पहले कह रहे थे नेकी 1 मिल रहा था, 2 का अदर मिल रहा था, और अब रमजान के अंदर करेंगे तो फिर 10 के हिसाब से, 100 के हिसाब से, 700 के हिसाब से आपको अदर मिल रहा है। तो खुश नसीब हैं वो लोग जो इस महीने के अंदर अपने आप को अल्लाह की अताअत और फरमाबरदारी के अंदर दे लें। अरबी ज़बान के अंदर ना जो सौम का मानी है रुक जाना, तो रुकना किस चीज से है? हर उस बुरी आदत से रुकना है, हर उस बुरे काम से रुकना है, हर गुनाह से रुकना है, और नेकियों की तरफ दौड़ धूप करनी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमजान का महीना आ गया है, और ऐ शर के तालिब, तू शर करने से रुक जा, ऐ बुराई के करने वाले बुराई से बाज आ जा। रमजान शुरू हो चुका, बुराई से बाज आ जा, और ऐ नेकियां करने वाले नेकियों में दौड़ लगा, आगे निकल। तो शैतान को बांध दिया जाता है, सरकश शयातीन को बांध दिया जाता है रमजान शरीफ के अंदर, ताकि लोग अच्छे तरीके से नेकियां कर सकें। और फिर हम लोग कहते हैं, कुछ लोग मसाइल पूछते हैं, फिर भी लोग बुरे काम कर रहे हैं, शैतान तो बंद गया, फिर भी लोग बुरे काम कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो अल्लाह ने शैतान बनाया उसको तो बांध दिया, जो लोगों के अंदर शैतान है ना, इंसानों के अंदर, वो नहीं रुकते। वो बड़ी देर ना शैतान के साथ रहे ना, तो अब वो शैतानी काम वो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रमजान का महीना जैसे ही शुरू होता है, जहन्नम के दरवाजों को भी बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, और अल्लाह ताला हर रोज जन्नत को मुज़य्यन करता है। हम भी मुज़य्यन करते हैं ना, जब हमारे घर में मेहमान आने वाले हों तो हम अपने घरों को मुज़य्यन करते हैं, उनको साफ करेंगे, सफाई करेंगे घर की, ये मेहमानों ने आना है। तो ये जन्नत में भी अल्लाह ताला, रमजान में भी अल्लाह ताला जन्नत को मुज़य्यन करता है। रोजा जो है ये एक ढाल है गुनाहों को, यानी रोजा रख लिया और आप जुबान से भी कोई गलती नहीं करनी, जुबान से भी कोई गुनाह नहीं करना, और हाथ से भी, पाँव से भी, निगाह से भी कोई गुनाह नहीं करना। ये नहीं कि आपने रोजा तो रखा हुआ है और टीवी खोल के बैठे हुए ड्रामे देख रहे हैं, फिल्में देख रहे हैं, और वो हया बाफ्ता वो खवातीन जिनका 70 तक भी पूरा नहीं है, चेहरे भी नंगे और जिस्म भी उनका नीम उरिया है, इतने जो है वो लिबास चुस्त पहने हुए हैं कि जिस्म उनसे उरिया नजर आता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, आखिरी जमाना ऐसा होगा कि खवातीन ने कपड़े पहने होंगे और वो नंगी नजर आएंगी। तो सहाबा कराम परेशान हो गए कि कपड़े पहने हुए और नंगी कैसे हो गई। तो आज तो किसी को मुगालता नहीं है,
हमारे नबी ने फरमाया या तो वो कपड़े बारीक होंगे इतने कि उनमें से 70 नजर आएगा, और या फिर वो कपड़े इतने चुस्त पहने हुए होंगे कि उनसे जिस्म का अंग अंग नजर आएगा। तो इन कपड़ों पे एहतियात करें और इस तरह के लोगों की तरफ देखना भी नहीं है। अच्छा, आपने ये जो लोग जिनका जो ड्रामों के अंदर या फिल्मों के अंदर इस तरह की चीजों के अंदर जिनका लगाव है, और तो उनका दिल नहीं बताता इनसे कि ये लोग अपने पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, पैसा कमाने के लिए अपना और हम अपना टाइम जाया करते हैं। उन्होंने तो पैसा कमाना, वो तो अदाकारी करते हैं। एक ही फिल्म ड्रामे में वो एक की आदमी की बहन बनी होती है, दूसरे में वो उसकी बीवी बनी होती है, तो दिल नहीं आवाजार होता कि पिछले में तो इसकी बहन थी, अब इसकी बीवी बनी हुई है। तो क्या है ये? हम कहते हैं अपनी बातों में फलां बंदा वो तो ड्रामे करता है, वो फलां बंदा तो ड्रामे करता है, तो ड्रामे करते तो हम खुश होकर देख रहे हैं उनको ड्रामों को। तो ये वक्त का ज़िया है और निगाहों की खयानत भी है इसके अंदर। और ये लव स्टोरियां देख देख के जो बच्चे आज के खराब हो गया, बर्बाद हो गए, जो मीडिया ने बर्बाद कर दिया। तो जितना अपने बच्चों को आप इन चीज़ों से बचा के रखेंगे, अपने आप को बचा के रखेंगे, उतना ही जो है आपका खुशबू बढ़ेगा, ईमान बढ़ेगा। और रोजे की हालत में तो बहुत ज्यादा परहेज, बिल्कुल भी नहीं देखना है। और कुछ लोग आते हैं खबरें सुननी होती हैं, सुन लिया करे, चलो खबरें, लेकिन ये नहीं कि हम खबरें देने वाले को ही जो है वो टिकटकी बांध के देखना शुरू कर दें। तो इन चीजों से एहतियात जो है जितनी आप कर सकें उतनी आप बढ़ा लें। रोजा ढाल है, यानी हमने रोजा रख लिया है, अब हमने किसी गुनाह की तरफ नहीं जाना, किसी बुराई की तरफ नहीं जाना। ढाल क्या चीज होती है? ये पहले जमानों में जब होती थी जंगें, तो तलवार चलाई जाती थी और तलवार के साथ एक ढाल होती थी। इस तरह ये तवा नहीं होता रोटी पकाने वाला, इस तरीके की वो बड़ी सारी ढाल होती थी। तलवार का वार किया, ढाल आगे कर दी, इसकी तलवार मुझे ना लगे, तरीका था ना उनको। फिर ये लड़ाई पहले सीखनी पड़ती है। तो अब हमने रोजा रख लिया, अब हमारे पास ढाल है, कोई भी बात करे, कोई हमें गाली दे तो हमने कहना कि नहीं मैं रोजे से हूँ। किसी ने हमारे साथ झगड़ा की, किसी की कोई है मूड झगड़ा करने का है, तो हमने भी झगड़ा नहीं करना कि मैं रोजे से हूँ, मेरा रोजा ना खराब हो जाए। कोई भी गलती करने को जी चाहा, कोई भी गुनाह जो पहले लोग कर रहे थे, अब रोजा रख लिया तो अब उस गुनाह को नहीं करना। मसलन ये तंबाकू नोशी, ये तंबाकू नोशी एक नशा है, और जो स्मेलदार चीज बदबूदार चीज है, और हर चीज वो जो बदबूदार है, जो नशा है, वो नशा है। और रोजे की हालत में भी सिगरेट को नहीं पीना, हुक्का तंबाकू वगैरह, और इस तरीके से जो भी तंबाकू लोग कुछ मुंह में रखते हैं। तो जब हम अपनी इन आदतों को खत्म करने के आ जाए तो खत्म नहीं कर लेंगे। सुबह से लेकर शाम तक जब तंबाकू किसी ने इस्तेमाल नहीं किया और पूरा महीना जब वो ना करे तो महीने के बाद उसकी आदत खत्म हो जाएगी। कोई करना चाहे तो सही, अपने आप को कोई पाबंदी के अंदर देना तो चाहे। रोजा सिफारिश भी करेगा, हम ये बात को मुश्किल करते हैं, तो रोजा सिफारिश भी करेगा कि अल्लाह इस बंदे ने खाने पीने से परहेज रखा, क्योंकि रोजा जो है जो तेरे और तेरे अल्लाह के दरमियान है, जो चीज किसी को नहीं पता। जब तू बताएगी तो लोगों को पता चलेगा कि तेरा रोजा है, जब तू नहीं बताएगी किसी को कोई पता नहीं तूने रखा है या नहीं रखा। और रोजा को तूने संभाल के रखा है, ये तुझे पता है या तेरे रब को पता है, किसी को नहीं पता। अगर कोई अपने रोजे को तन्हाई में तोड़ता है, जाया करता है, तो उसका और अल्लाह के दरमियान है, किसी को नहीं पता इसका। इसीलिए तो अल्लाह ने फरमाया मैं इसका अजर दूंगा, क्योंकि रोजा सिफारिश करेगा फिर कार को कि अल्लाह इस बंदे ने तेरे हुक्म के मुताबिक सारा दिन अपने आप को भूखा प्यासा रखा। आखिरी दावा ना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।